Hello, my dear student. Welcome to the subject name is Industrial Relation and the Labor Law. Today we are going to discuss very important topic that is a collective bargaining. Uh, Today we are going to study about the meaning of the collective bargaining process, and then collective bargaining types and example. Collective bargaining, we have already discussed the meaning part in the last lecture, that is a lecture number 9. We have I have given you a very brief idea about the collective bargaining, but in this particular session I'm going to tell you what exactly the collective bargaining, its process and type and example. And this is a very important topic in an examination point of view, and this question can be asked in a separate form. So that's why I'm giving you a particular lecture on this collective bargaining topic. Now moving towards the meaning part. Before starting the definition of the collective bargaining, I would like to tell you what is exactly the collective bargaining meaning. As you know that if you go to the market and bargain over the vegetable price, आप कभी भी मार्केट में जाते हैं वेजिटेबल मार्केट में और वहां जाके आप वेजिटेबल से रिलेटेड बार्गेनिंग करते हैं, and you know that if you go to market and purchase a vegetable, the price of the vegetable is 50 rupees. अगर vegetable का price 50 rupees है and you are asking it in a 40 rupees, and what you do, you basically do a bargaining with the seller. तो आप bargaining करोगे, and because you want it in at 40 rupees instead of 50 rupees, so you're bargaining over that. And if you're bargaining, then definitely the seller would come between 40 to 50 rupees, तो नियर बाय आ जाएगा. देन यू डेफिनेटली बार्गेन ओवर दैट एंड यू कैन सेट द प्राइस एज अप्रोक्सीमेटली 45 रुपीज में आप उसको परचेज कर लोगे. दिस इज ऑल अबाउट द बार्गेनिंग पार्ट. और यहाँ पर जो आपने बार्गेनिंग किया, इस बेसिकली इंडिविजुअल बार्गेनिंग किया आपने अपने सेलर के साथ. तो जो 50 रुपीज की चीज है जो मार्केट में मिल रही थी, आपने बार्गेनिंग के थ्रू जो आप 40 रुपीज में चाह रहे थे, आप उसे 45 रुपीज में कॉम्प्रोमाइज करके ले आए, क्योंकि आप 5 रुपीज आपने एक्स्ट्रा दिए और सेलर ने 5 रुपीज कम किए. तो दिस इज ऑल अबाउट द बार्गेनिंग प्रोसेस. बार्गेनिंग प्रोसेस में हम नेगोशिएट करते हैं, और नेगोशिएशन में हम एक पर्टिकुलर कॉम्प्रोमाइज करके एक पर्टिकुलर प्राइस में आते हैं. एंड दिस इज बेसिकली इंडिविजुअल बार्गेनिंग यू डू. तो हम इंडिविजुअल बार्गेनिंग अपनी लाइफ में, डे टू डे लाइफ में डेफिनेटली करते हैं. इन अ सेम मैनर कलेक्टिव बार्गेनिंग भी कंपनी में होता है, इंडस्ट्रीज में होता है. और ये कलेक्टिव बार्गेनिंग कौन करता है? कलेक्टिव बार्गेनिंग वहाँ के वर्कर करते हैं, और वर्कर की साइड से ट्रेड यूनियन करती है, बिकॉज ट्रेड यूनियन इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द वर्कर. तो ट्रेड यूनियन वर्कर के बिहाफ पे नेगोशिएट करती है ओवर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. यहाँ पर जो वर्कर और एम्प्लॉयर का जो रिश्ता होता है वो बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ द एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे होता है. सो डेफिनेटली हियर द नेगोशिएशन इज ओवर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. तो ये जो नेगोशिएशन होगी, जो बार्गेनिंग होगी, वो टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड होती है. तो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होता है. कलेक्टिव बार्गेनिंग इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ द टू वर्ड. Collective means group of people or the person or the employee working in a company. It means collective. And bargaining means negotiation. When the group of people negotiating, that it is a process of negotiating the terms of employment. एक process होता है जिसमें कि हम terms of employment पे negotiate करते हैं. ये negotiation किसके बीच में होता है? Employer and worker के बीच में होता है. तो यहाँ पर हम कह सकते हैं it is a process where the group of people negotiate over the terms of employment. Terms of employment से related नेगोशिएट करते हैं, बार्गेनिंग करते हैं, एंड दे कम टू अ पर्टिकुलर kind of decision. So this is all about the definition part, and we can say that terms of employment basically क्या हो सकता है? It include the item like the condition of employment. condition से related हो सकता है कि किस तरह की condition of employment से related हम बार्गेनिंग कर सकते हैं. द वर्कर कैन बार्गेन ओवर द कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट. इट कुड बी रिलेटेड ऑफ द वर्किंग कंडीशन से रिलेटेड बार्गेनिंग हो सकता है, नेगोशिएशन हो सकता है. इट कुड बी रिलेटेड टू द वर्क प्लेस रूल से रिलेटेड हो सकता है, बेसिक पे से रिलेटेड होता है. इट कुड बी रिलेटेड टू द ओवर टाइम वर्क से रिलेटेड बार्गेनिंग और नेगोशिएशन हो सकता है. वर्कर को वर्किंग आवर्स से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है. द वर्कर को शिफ्ट लेंथ से प्रॉब्लम हो सकती है. दे कैन ऑल्सो नेगोशिएट ओवर द वर्किंग आवर्स, सिक लीव, vacation time, retirement benefits, and the health benefit. This is basically the terms of employment which is negotiated by the employees or the group of employees to the employer. Employer से group of employees करते हैं
over the terms of employment. So this is all about the collective bargaining. तो generally speaking we can say that collective bargaining is conducted through the trade union के through conducted होता है, because trade union is a representative of the member of the company. जो company के employees होते हैं उनके represented होते हैं trade union, and this there will be a representative from the union that negotiate on their behalf, and on the behalf of the worker or the employees and the group of the employees के behalf पर trade union negotiate करती है अपने employer से. तो you can say that this is the ट्रेड यूनियन. और ट्रेड यूनियन किससे नेगोशिएट कर रही है? यहाँ अपने एम्प्लॉयर से नेगोशिएट कर रही है. एम्प्लॉयर मींस मालिक से. ऑन द बिहाफ ऑफ वर्कर, वर्कर के साइड से ट्रेड यूनियन नेगोशिएट कर रही है. किससे कर रही है? एम्प्लॉयर से कर रही है ओवर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. एम्प्लॉयमेंट्स की कंडीशन के पॉइंट पर ही नेगोशिएशन कर रहा है. तो दिस इज ऑल अबाउट द कलेक्टिव बार्गेनिंग definition and the meaning part. Now moving towards the process, this is very important. As you know, the collective bargaining is generally conducted through a trade union. Trade union के through conducted होता है. Employees will pay a trade union a relatively small fee for each month for them as a member. यहाँ employees क्या करते हैं? Trade union क्यों करती है employees के लिए काम? Because the employees will pay a small you can small fees, you can say a charge or small a very minimal amount of money they have paid as a member to the trade union. तो वो member बनने के लिए employees थोड़ा सा पैसा देती हैं और जिसके थ्रू वो इस ट्रेड यूनियन का पार्ट बन जाते हैं. तो एम्प्लॉइज जो होते हैं उनको दे हैव टू बी अ पार्ट ऑफ द ट्रेड यूनियन टू स्टार्ट अ कलेक्टिव बार्गेनिंग प्रोसेस. कलेक्टिव बार्गेनिंग में अगर आपको करना है, आपको अपनी प्रॉब्लम्स और एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड इश्यूज को यू वांट टू बी put forward in the front of the management, you have to be part of the trade union first, then you can go through the collective bargaining process में आप जा सकते हैं. और it is a way of collective bargaining is basically preventive measures to avoid the conflict. तो conflict को avoid करने के लिए bargaining is one of the process. तो आप कॉन्फ्लिक्ट ना हो, कंपनी में कोई इश्यूज ना हो, दैट्स व्हाई द कलेक्टिव प्रोसेस इज बेसिकली अ स्टेप दैट इज टेकन बाय द एम्प्लॉइज. तो एम्प्लॉइज इस कलेक्टिव बार्गेनिंग प्रोसेस को यूज करते हैं. एंड यू कैन से दैट इट इज अ टेक्निक बाय विच द dispute over the condition of the employment is resolved amicably rather than the coercion. So this is the step that resorted by the employees and the company of the employees. तो कंपनी के जो एम्प्लॉइज होते हैं उनके द्वारा ये स्टेप लिया जाता है कलेक्टिव बार्गेनिंग. नाउ स्टार्ट विद द प्रोसेस पार्ट. देयर इज अ 5 you can see the step in the collective bargaining. So we can say this is a set of bargaining process. The first step is preparing for the negotiation. The first step is preparing the negotiation. Then second step is propose the key demand. Then third is negotiation. And then fourth, agreement reached, and then the administration of the agreement. This is the 5 steps we have included in the collective bargaining. Collective bargaining process में 5 steps होते हैं. Now let's start with the first one by one. Preparing for the negotiation. ये पहला step होता है. This is the first step, preparing for the negotiation. Here what to be discussed. यहाँ डिसाइड होता है नेगोशिएशन. ट्रेड यूनियन जो बेसिकली होते हैं ये डिसाइड करते हैं कि हमें एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम्स है. दे डिसाइडेड व्हाट टू बी डिस्कस इन द नेगोशिएशन. उन्हें नेगोशिएशन में क्या डिस्कस करना है उससे पहले उस पॉइंट्स को देखना होता है. तो दिस इज बेसिकली ए मे कवर अ नंबर ऑफ एरिया वे द मेंबर आर द मोस्ट कंसर्न. तो जिन एम्प्लॉइज को जो प्रॉब्लम्स होती है, जो उनकी टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड इश्यूज होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, ग्रीवेंसेस होते हैं, दे पुट फॉरवर्ड और इन्हें इनके की पॉइंट्स को नोट डाउन करती है ट्रेड यूनियन. एंड सिंपली पुट द ट्रेड यूनियन इज बेसिकली नेगोशिएटर लुक टू फाइंड आउट द की पॉइंट बाय विच दे आर नेगोशिएटेड ऑन. तो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, this is a step where the trade union decided what to be discussed, or they decided the key point which are going to be negotiated. तो कौन से पॉइंट को नेगोशिएट करना in the front of the employer, this point has been decided in this stage. तो preparing for the negotiation में हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा पॉइंट या कौन से की पॉइंट्स है जो एम्प्लॉयर्स को की साइड से ट्रेड यूनियन को डिस्कस करते हैं, नेगोशिएट करने हैं इन द फ्रंट ऑफ द एम्प्लॉयर के सामने नेगोशिएट. लेट टेक एन एग्जांपल, द लैक ऑफ द लोकल कैंटीन में बी इशू. तो सपोज अगर एम्प्लॉइज को प्रॉब्लम्स है कि कैंटीन नहीं है, लोकल कैंटीन नहीं है, तो यहाँ पर बेसिकली
इस तरह की प्रॉब्लम्स को पॉइंट आउट किया जाता है कि हाँ, हमें ये तरह की प्रॉब्लम्स को वी हैव टू पुट इन फ्रंट ऑफ द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर के पास ये बात रखनी पड़ेगी, नेगोशिएट करनी पड़ेगी कि हमें कैंटीन प्रोवाइड करो। और इट द प्रॉब्लम कैन बी रिलेटेड टू द वर्कर वांट टू गेट एक्स्ट्रा पे फॉर द वर्क ऑन द संडे। तो ये भी हो सकता है कि उन्हें एक्स्ट्रा पेमेंट चाहिए, कि अगर वो संडे में वर्क करते हैं तो एक्स्ट्रा पेमेंट से रिलेटेड भी इश्यूज को नेगोशिएट कर सकते हैं इन द फ्रंट ऑफ द एम्प्लॉयर। तो दिस पॉइंट आर डिस्कस इन द नेगोशिएशन और इन द प्रिपेयरिंग नेगोशिएशन स्टेट में। द नेगोशिएशन में हम किस पॉइंट को हम नेगोशिएट करने जा रहे हैं उसका डिस्कशन और ब्रीफ एक नोट्स बना जाता है। तो वट एवर द की इशू और द फर्स्ट स्टेज वुड बी कंपाइल्ड फॉर दिस रेडी फॉर द नेगोशिएशन। तो पहले स्टेज में हम की इशू को डिसाइड करते हैं कि वट इज टू बी डिस्कस इन द नेगोशिएशन। इसको डिसाइड किया जाता है की इशू क्या है जिनको हमें नेगोशिएट करना है। इन द सेकंड स्टेज दैट इज अ प्रपोज की डिमांड। सेकंड स्टेज में क्या होता है, बेसिकली वंस अ लिस्ट ऑफ द की आइटम। की आइटम मींस जो इश्यूज हैं जो हमें डिस्कस करने हैं, नेगोशिएट करने आर डिसाइडेड, आर हाईलाइटेड बाय द ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन उनको हाईलाइट कर देती है दैट दिस आर द पॉइंट द लाइक लोकल कैंटीन प्रॉब्लम्स है एंड द एक्स्ट्रा पेमेंट वांट बाय द वर्कर। तो दिस पॉइंट इज की पॉइंट इज नोटेड डाउन बाय द ट्रेड यूनियन एंड दिस इज कंपाइल्ड डाउन इन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। तो कंपाइल कर दिया जाता है इन पॉइंट्स को एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में एंड देन पास ऑन द रिलेवेंट पार्टी। तो रिलेवेंट पार्टी को इसको पास कर दिया जाता है एंड दिस इज बेसिकली नोन, इस डॉक्यूमेंट को बोलते हैं की डिमांड डॉक्यूमेंट बिकॉज दिस इज अ डिमांड बाय द वर्कर साइड एंड दिस की डिमांड इज बेसिकली पुट इन फ्रंट ऑफ एम्प्लॉयर एंड द आइटम इन अ रेड लाइन अब बेसिकली नेगोशिएटिंग मस्ट स्टार्ट विद। तो अगर जो आइटम डॉक्यूमेंट में रेड लाइन से लिखे हुए हैं दिस पॉइंट विल बी डिस्कस फर्स्ट। तो इन पॉइंट को सबसे पहले नेगोशिएट किया जाएगा इन फ्रंट ऑफ द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के सबसे पहले ट्रेड यूनियन इन पॉइंट्स को और रखेगी एंड ऑफन दिस वुड बी द वेजेस की बेनिफिट टू द एम्प्लॉय। तो ये बेसिकली रेड पॉइंट में वही पॉइंट्स होते हैं जो वेजेस से रिलेटेड होते हैं और बेनिफिट से रिलेटेड होते हैं फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द एम्प्लॉय। एम्प्लॉयज के बेनिफिट्स और वेजेस से रिलेटेड होते हैं। सो इफ दीज आर नॉट मैट द नेगोशिएशन विल बी फॉरडन। अगर इस तरह के पॉइंट्स अगर एम्प्लॉयर नहीं सुनता है या जो रिलेटेड पार्टी है वो उसको नेगोशिएट नहीं करती है तो नेगोशिएशन फॉल डाउन हो जाता है। और दिस इज मे बी अ कंडीशन वेयर द यूनियन वुड आस्क द मेंबर और द एम्प्लॉयज टू टू डू अ स्ट्राइक। तो यहाँ पर इस स्टेज में अगर नेगोशिएशन अगर अच्छे से नहीं हो पाती है की डिमांड एम्प्लॉयर नहीं सुनता है देन द ट्रेड यूनियन कैन आस्क और वुड आस्क द मेंबर टू डू अ स्ट्राइक। तो यहाँ पे स्टेज वेरी रिस्की काइंड ऑफ स्टेज। तो नेगोशिएट ये की डिमांड प्रपोज की डिमांड स्टेज में वेरी स्टेजेस यहाँ पर स्ट्राइक की कंडीशन हो सकती है। नाउ मूविंग टुवर्ड द थर्ड स्टेप दैट इज अ नेगोशिएशन। तो पहले स्टेज में हमने देखा कि की पॉइंट डिसाइड हो चुके हैं। सेकेंड स्टेज में हमने देखा कि जो की डिमांड्स होती है उनका एक प्रपोजल बन चुका है। नाउ देयर मे बी यू कैन से देयर मे बी अ सेट डाउन मीटिंग emails phone calls whereby the details of the deals are discussed। तो यहाँ बेसिकली क्या होता है मीटिंग डिसाइड होती है। तो आफ्टर जब हमारा पूरा की प्रपोजल डिमांड तैयार हो गया है अब हमारी मीटिंग डिसाइड होगी ईमेल फोन कॉल्स के थ्रू हम अपने डिटेल डील डिस्कस करेंगे विद द एम्प्लॉयर। तो यहाँ ट्रेड यूनियन ईमेल्स के थ्रू फोन के थ्रू मीटिंग के थ्रू दे डिस्कस द पॉइंट्स दैट द एम्प्लॉइज हैज। तो उसको डिस्कस करेंगे एंड बोथ side may request certain point of deal to be left out while the employer may request it sometime below। तो मगर जो भी डिस्कशन होगा इस डिस्कशन में दोनों साइड से बार्गेनिंग होगी, दोनों साइड से नेगोशिएशन होगी। कुछ पॉइंट्स जो होंगी वो एम्प्लॉयर अपनी साइड से हटाने के लिए कहेगा, कुछ पॉइंट को ऐड करने के लिए कहेगा। इन द सेम मैनर ट्रेड यूनियन कुछ पॉइंट को ऐड करेगी, कुछ पॉइंट को लेफ्ट आउट करेगी एंड दिस इज अ बेसिकली अ बार्गेनिंग। जैसे कि हमने प्राइस में देखा कि हम प्राइस में 50 रुपीज प्राइस था और जो मेन कस्टमर होता है वो 40 रुपीज में चाह रहा है। तो 40 रुपीज में तो सेलर नहीं देगा बट दे एग्री ऑन अ पर्टिकुलर इन बिटवीन 42 एंड 50। तो द डिसाइडेड पॉइंट इज 45। इन द सेम मैनर यहाँ पर नेगोशिएशन में भी कुछ पॉइंट्स ऐड होंगे, कुछ पॉइंट ऐड होंगे, कुछ बातों में एग्री करेगा एम्प्लॉयर एंड इन द सेम मैनर द ट्रेड यूनियंस आल्सो एग्री ऑन द सम पॉइंट ऑफ बाय द एम्प्लॉयर। तो एम्प्लॉय के कुछ पॉइंट में वो एग्री करेगा। एज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस बोथ पार्टी में टेक टाइम टू गैदर इन्फॉर्मेशन वट एवर द स्पेसिफिक कोर्स ऑफ एक्शन मस्ट बी टेक एंड यहाँ पर बेसिकली क्या होता है बोथ पार्टी गेन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ईच अदर एंड
and BAME explanation, and what would be the best solution of the particular solution is to be found out through this negotiation process. So we can say that it's for example, we can take an example, increase an employee salary by 10% is going to be cost the company. As you know that जब भी हम सैलरी इंक्रीज करेंगे तो एम्प्लॉयर का जो कॉस्ट होगा वो भी इंक्रीज करेगा, क्योंकि सैलरी जब बढ़ेगा तो उसकी कॉस्ट होगी एम्प्लॉयर की वो भी बढ़ेगी. तो यहाँ पर नेगोशिएशन वुड हैव वेदर इट्स फाइनेंशियली पॉसिबल और नॉट फॉर द एम्प्लॉयर साइड, यहाँ नेगोशिएशन हो रहा है और व्हाट वुड द पॉसिबल सोल्यूशन निकाला जाएगा. तो इस तरह से इंक्रीमेंट होना चाहिए सैलरी का कि कॉस्ट भी ज़्यादा ना हो कंपनी को और सैलरी भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज ना हो, वो इतना मिनिमम लेवल पे इंक्रीज हो जाए कि जितना कि एम्प्लॉयज़ जो हो वो सेटिस्फाई जाए, मोटिवेटेड हो जाता है. तो दिस इज द ऑल अबाउट द नेगोशिएशन पार्ट. नेगोशिएशन में बेसिकली वी विल डिस्कस कि व्हाट वुड बी द पर्टिकुलर सोल्यूशन फॉर द पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स, उसके बारे में हम नेगोशिएट करते हैं और उनको पर्टिकुलर एक कॉम्प्रोमाइज स्टेज में आते हैं. जब कॉम्प्रोमाइज स्टेज में आते हैं तो एक सोल्यूशन कम आउट आता है एंड द नेक्स्ट स्टेज इज स्टार्ट एग्रीमेंट स्टेज, जब दोनों फाइनली कम विद एग्रीमेंट, क्योंकि दोनों को एक सोल्यूशन पता चल गया, दे कम टू अ पर्टिकुलर पॉइंट और यू कैन से द बोथ पार्टी नेगोशिएट, ईच पार्टी ट्राई टू परsuade to the other to agree with his or her point of view और यहाँ resolve an issue in a such way that both party find a acceptable solution. तो दोनों के दोनों एक acceptable solution देंगे और यहाँ पर एक agreement formation हो जाएगा and the legal wording the binding agreement put in place so that both party are liable. दोनों agreement में formation कर देंगे. both party means the employer and the employees, एम्प्लॉइज की साइड से ट्रेड यूनियन, दोनों के दोनों बाइंड हो जाएंगे इस एग्रीमेंट में और यहाँ एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन हो जाएगा. एनी लीगल एग्रीमेंट आज साइन और यहाँ पर दोनों पार्टी अपने साइड से साइन कर देगी और दोनों साइड करके इन शॉर्ट वी कैन से दिस इज स्टेज वेयर द एग्रीमेंट इज पुट इनटू द प्लेस एंड द फाइनल डिटेल आर अरेंज्ड. यहाँ पर बेसिकली फाइनल डिटेल्स इंफॉर्मेशन जो भी एम्प्लॉइज की प्रॉब्लम्स होती है उससे रिलेटेड सोल्यूशन जो होते हैं वो पॉइंट आउट हो जाते हैं और एग्रीमेंट फॉर्म हो जाता है कि एम्प्लॉयर ऐसा करेगा एंड देन विल दिस प्रॉब्लम्स ऑफ द एम्प्लॉइज ओवर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज रिजॉल्व. तो इस तरह से प्रॉब्लम रिजॉल्व की जाती है. दिस इज ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ द कलेक्टिव बार्गेनिंग प्रोसेस में हम बेसिकली वी हैव स्टडी कि क्या होता है इस तरह से. नाउ द लास्ट स्टेज जब एग्रीमेंट फॉर्मेशन हो जाएगा, नाउ लास्ट स्टेज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एग्रीमेंट. एग्रीमेंट होना ही काफी नहीं होता, वी हैव टू एडमिनिस्टर द agreement. Administer means we can manage the agreement in this stage by which the union will look over to hold the employer to account and ensure the agreement is being implemented. This is a very important topic. This is very important stage where the agreement is easy to form but it's difficult to implement. So in the same manner the ट्रेड यूनियन क्या करेगी, ट्रेड यूनियन इज लुक ओवर द एग्रीमेंट, एडमिनिस्टर्ड करेगी एग्रीमेंट को, दैट द इज द एग्रीमेंट इज पर्टिकुलरली इज इम्प्लीमेंटेड इन सच वे विच इट वाज मेड, जिस तरीके से वो बनाया गया है क्या वो उस तरीके से एग्रीमेंट हो रहा नहीं हो रहा, तो उसको चेक करेगी. लाइक वी कैन टेक एग्जांपल दैट वर्कर आर गेटिंग पेड मिनिमम सैलरी, जो सैलरी डिमांड की थी वर्कर ने उसको क्या उतनी मिल रही है नहीं मिल रहा, और जो फर्म है उसको न्यूली रिक्वेस्ट जो कैंटीन थी वो मिल रही नहीं मिल रही जो वर्कर के हिसाब से डिमांड थी. तो इस सब चीज को एडमिनिस्टर्ड किया जाएगा इन बाय द ट्रेड यूनियन एंड दिस इज द लास्ट स्टेज. एंड फर्दरमोर सम एग्रीमेंट मे बी have some expiry date by which the another set of negotiation will take place, so the collective bargaining system can be seen as continuous process. कुछ एग्रीमेंट ऐसे होते हैं जिनका एक्सपायरी डेट होता है, मींस एग्रीमेंट कैन बी हैपन विद इन टाइम ड्यूरेशन. तो अगर एग्रीमेंट इस ड्यूरेशन में हो गया तो कंप्लीट माना जाएगा, अदरवाइज नेक्स्ट नेगोशिएशन प्रोसेस स्टार्ट होगा एंड थ्रू द कलेक्टिव बार्गेनिंग प्रोसेस. सो वी कैन से दैट नेक्स्ट नेगोशिएशन होगा अगर वो एग्रीमेंट कंप्लीट हो जाता है. तो नेगोशिएशन इज बेसिकली अ कंटिन्यूस प्रोसेस. तो कलेक्टिव बार्गेनिंग में बेसिकली कलेक्टिव बार्गेनिंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है जिसमें नेगोशिएशन चलता ही रहता है. अगर एक प्रॉब्लम रिजॉल्व होगी तो सेकंड प्रॉब्लम एम्प्लॉइज की जनरेट हो जाती है एंड इन अ कंपनी को सर्वाइव करने के लिए कई तरह की एम्प्लॉइज की कई तरह की प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना पड़ता है. एंड द कलेक्टिव बार्गेनिंग इज वन ऑफ द बेस्ट वे टू रिजॉल्व द इशू ऑफ द एम्प्लॉइज इन एमिकेबल मैनर एंड टू मेंटेन द पीस एंड हार्मोनी इन द रिलेशनशिप बिटवीन द एम्प्लॉइज एंड एम्प्लॉयर. तो ये बहुत अच्छा तरीका होता है जिससे कि हम एम्प्लॉइज की प्रॉब्लम्स को कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सकते हैं ताकि वो कॉन्फ्लिक्ट ना बने और प्रॉब्लम बहुत सीवियर लेवल पे ना जाए, स्ट्राइक जैसी कंडीशन ना हो, बिकॉज इन अ स्ट्राइक बोथ पार्टी गेट हार्म. तो दिस इज द प्रोसेस
और हमने इसमें पढ़ा कि दिस द मेन इंपॉर्टेंट प्रोसेस, तो हमने पढ़ा कलेक्टिव बार्गेनिंग में। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द टाइप ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। कलेक्टिव बार्गेनिंग के टाइप्स क्या होता है? दे आर द 5 टाइप्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। द फर्स्ट वन इज distributive bargaining. Distributive means defined as a negotiation process by which the one party benefit at the expense of party. यहाँ पर one party will get the benefit on the expense of other. दूसरे को harm करके या दूसरे को loss करके दूसरी पार्टी को win करना होता है. Means यहाँ one party will get the loss and other party will get the win. तो means will get the benefit. तो यहाँ एक पार्टी को loss होगा and other party will get the profit. तो यहाँ एक पार्टी loss करेगी and on the basis of the other loss the other party will win. तो यहाँ एक पार्टी के लॉस पर दूसरी पार्टी विन करेगी, मीन्स दोनों को, एक पार्टी को लॉस होगा, जीरो सम गेम है, मीन्स एक पार्टी को लॉस होगा एक पार्टी को विन होगा. तो इट इज अ बेसिकली नेगोशिएशन स्ट्रेटेजी टू डिस्ट्रीब्यूट अ फिक्स रिसोर्सेज. ये एक ऐसी नेगोशिएशन स्ट्रेटेजी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव में. यहाँ पर हमें डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ते हैं फिक्स रिसोर्सेज को, और जब भी हम फिक्स रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो यहाँ एक पार्टी को तो लॉस होगा और एक पार्टी को क्या होगा, बेसिकली एक पार्टी को बेनिफिट होगा. तो वी कैन टेक एग्जांपल दैट सपोज मनी है, तो यहाँ पर जो वर्कर है, वर्कर वांट सैलरी, वर्कर क्या जाता है, सैलरी जाता है. तो वर्कर की अगर सैलरी बढ़ेगी तो एम्प्लॉयर को क्या होगा, नुकसान होगा. तो यहाँ एम्प्लॉयर को लॉस होगा और वर्कर को क्या होगा, बेनिफिट होगा. जब कोई भी ऐसी कलेक्टिव बार्गेनिंग प्रोसेस होगी वहाँ जहाँ पर वर्कर गेट द बेनिफिट ऑन द एक्सपेंस ऑफ द ऑन द अदर पार्टी, मीन्स एम्प्लॉयर की साइड से उसको बेनिफिट मिलेगा और एम्प्लॉयर को लॉस मिलेगा. तो दिस इज द वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ द डिस्प्यूटिव बार्गेनिंग. डिस्प्यूटिव बार्गेनिंग में वर्कर को बेनिफिट होता है, ऐसी बार्गेनिंग में तो वर्कर विल गेट द बेनिफिट ऑन द एक्सपेंस ऑफ द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर को लॉस होगा. So now moving towards the second type of bargaining, integrative. Integrative bargaining is whereby the both party aim to benefit in such seen as win-win bargaining. It means that integrative bargaining में दोनों पार्टी को लॉस होगा या तो दोनों पार्टी को विन होगा. Means both no one can, एक पार्टी को लॉस या विन नहीं होगा. मीन्स एक पार्टी लॉस और एक पार्टी विन, ऐसे सर्कमस्टेंसेस नहीं होंगे. दोनों पार्टी को विन होगा तो दोनों पार्टी लॉस में जाएगी. इट मीन्स बोथ पार्टी गेट बेनिफिटेड थ्रू दिस काइंड ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग प्रोसेस. इंटीग्रेटिव प्रोसेस में बोथ पार्टी में ब्रिंग टुगेदर अ लिस्ट ऑफ डिमांड बाय द विच एग्रीमेंट इज रीच एंड बोथ पार्टी गेट द बेनिफिट. तो दोनों पार्टी को बेनिफिट होगा. मीन्स यहाँ प्रोडक्टिव लेवल बढ़ेगा. सपोज वी कैन टेक एन एग्जाम्पल, प्रोडक्टिव लेवल अगर बढ़ता है तो कंपनी एम्प्लॉयज की जो सैलरी होगी वो भी इंक्रीज करेगी. इट मीन्स एम्प्लॉयर को भी बेनिफिट मिलेगा एज वेल एज द एम्प्लॉयज ऑल्सो गेट बेनिफिट. तो इस तरह की कलेक्टिव बार्गेनिंग इस तरह का होना चाहिए जिसमें कि दोनों पार्टीज को बेनिफिट हो. और दिस इज द टू put in another way, interactive bargaining involve both party considering other point of view, needs, demand, fear and concern. As a result both party either lose or gain by the same amount. तो यहाँ पर बेसिकली दोनों के दोनों पार्टीज, बोथ पार्टीज जो एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉइज पार्टी है, बोथ कंसिडरिंग देयर each other point of view, दोनों एक दूसरे की point of view को समझेगी and they know their what the other party needs, want and fear and concern, and they both party either they gain the loss or they gain the benefit. तो दोनों पार्टी को या तो लॉस होगा या तो गेन होगा. दोनों को एक जैसी कंडीशन में आएंगे, both get the same amount of profit and same amount of loss. तो this is the integrative bargaining. Now moving towards the third one, this is the productive. Productive means where the both party negotiating around the productive and the pay. जब भी हम बार्गेनिंग, जो कलेक्टिव बार्गेनिंग होता है, बेसिकली इट is if the collective bargaining is related to the productivity and the pay issue of the employees की productivity और employee pay से related अगर कोई भी issue होता है, इस collective bargaining को बोलते हैं productive bargaining. So the union may suggested that higher salary would boost the productivity. However, this is unknown to the business. तो यहाँ पर कलेक्टिव बार्गेनिंग बेसिकली क्या होता है, यहाँ कहा जाता है, वर्कर कहते हैं कि हमारी सैलरी बढ़ाओ और सैलरी बढ़ाने से बिजनेस को बेनिफिट होगा, बट दिस इज द अननोन कि प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा. सो द टारगेट ओरिएंटेड बोनस में बी सजेस्टेड न्यू वे ऑफ इम्प्रूविंग द प्रोसेस. तो यहाँ बेसिकली ये बताया गया है कि किस तरह से प्रोडक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू हम प्रोडक्टिव बार्गेनिंग कर सकते हैं. मीन प्रोडक्टिव एंड पे के थ्रू कंपनी में जो ट्रेड यूनियन होते हैं, दे पुट देयर डिमांड इन फ्रंट ऑफ द एम्प्लॉयर. In a simpler way, we can say that a productive bargaining is where the two party look to agree to change that what would
boost productivity in turn for the higher wages and other benefit. यहाँ पर basically collective bargaining में जो trade union होते हैं, they put demand that they would boost the productivity if the employees get the higher salary. तो यहाँ पर ये डिमांड रखते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग में जो ट्रेड यूनियन होते हैं, देयर डिमांड इज दैट दे वांट दैट एम्प्लॉइज की सैलरी इंक्रीज कर दो. उससे क्या होगा, द एम्प्लॉइज विल इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द कंपनी. तो दिस काइंड ऑफ बार्गेनिंग इज नोन एज प्रोडक्टिव बार्गेनिंग, जिसमें कि प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज की बात कहते हैं. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द fourth point, that is a composite bargaining. Composite bargaining refer to the negotiation. यहाँ पर एक negotiation होगा that focus on the number of elements that are related, not related to the pay. Composite bargaining is basically it is a bargaining, or you can say the negotiation is generally related to the welfare and the job security issue. So this is a composite bargaining. Yes, a bargaining hall where the trade union put the demand of the welfare and the job security of the employee in front of the एम्प्लॉयर के सामने वेलफेयर और जॉब सिक्योरिटी से रिलेटेड डिमांड रखते हैं. एंड द बार्गेनिंग ओवर दिस इशू, वेलफेयर एंड जॉब सिक्योरिटी इशू, इज नोन एज कंपोजिट बार्गेनिंग. तो यहाँ पर कंपोजिट बार्गेनिंग से रिलेटेड ये होता है. मे बी वेलफेयर से रिलेटेड मीन्स वर्किंग कंडीशन हो सकती है, वेलफेयर में रिक्वायरमेंट होता है, डिसिप्लिनरी प्रोसेस हो सकता है. इससे रिलेटेड बात रखी जाती है बाय द ट्रेड यूनियन इन द फ्रंट ऑफ द एम्प्लॉयर. तो दिस इज द कंपोजिट बार्गेनिंग. यहाँ जो मेन प्रॉब्लम, जो मेन इशू होता है वो होता है वेलफेयर एंड जॉब सिक्योरिटी से रिलेटेड होता है. नाउ मूविंग टुवर्ड द लास्ट kind of collective bargaining, that is a concessionary bargaining. Concessionary bargaining is based on the union giving back previous benefit to the employer. ये एक तरह का कंसेशनरी होता है, मीन्स कंसेशन दिया जाता है. एंड दिस काइंड ऑफ ब्रेनिंग में क्या होता है, बेसिकली बार्गेनिंग में यूनियन गिविंग बैक द प्रीवियस बेनिफिट. द प्रीवियस बेनिफिट दे यूनियन एक्चुअल में गिविंग द प्रीवियस बेनिफिट टू द एम्प्लॉयर, वो पुराना कोई बेनिफिट देती है टू द एम्प्लॉयर. फॉर एग्जाम्पल द ट्रेड यूनियन मे एग्री टू लोअर द वेजेस इन द रिटर्न फॉर द जॉब सिक्योरिटी. बेसिकली यहाँ पर बेसिकली यू कैन से इट इज द बेसिक कंपनसेटरी काइंड ऑफ बार्गेनिंग. यहाँ पर ट्रेड यूनियन हेल्प टू और प्रोवाइड द बेनिफिट टू द एम्प्लॉयर. वो एम्प्लॉयर को बेनिफिट करने की कोशिश करती है, और यहाँ बेसिकली जॉब सिक्योरिटी से रिलेटेड होता है. इन दिस कंडीशन में उन्हें पता होता है कि फॉर द सेफ्टी एंड द सर्वाइवल ऑफ द कंपनी दिस काइंड ऑफ बार्गेन इज रिक्वायर्ड. तो कंपनी के सर्वाइवल और सेफ्टी के लिए जरूरी होती है, एज वेल एज एम्प्लॉइज के लिए भी जरूरी होते हैं. इसमें क्या होता है, बेसिकली कंपनी के सर्वाइवल के लिए कंपनी कहती है कि मैं रिट्रेंचमेंट करूंगी, एम्प्लॉइज को हटाऊंगी. तो यहाँ पर जो ट्रेड यूनियन होते हैं वो कहते हैं इंस्टेड ऑफ फायरिंग आउट द एम्प्लॉइज, दे पुट द डिमांड लोअर दैट वेजेस ऑफ द एम्प्लॉइज. तो वो कहते हैं कि एम्प्लॉइज की सैलरी को कम कर दो बट उनकी जॉब सिक्योरिटी बनाए रखो. तो दिस इज अ बेसिकली अ म्यूचुअल काइंड ऑफ डिसीजन टेकन बिटवीन द ट्रेड यूनियन एंड द एम्प्लॉयर. तो दोनों मिलकर एक डिसीजन लेते हैं कि एम्प्लॉइज को हम हटाएंगे नहीं, इंस्टेड ऑफ फायरिंग आउट द एम्प्लॉय और रिट्रेंचमेंट ऑफ द एम्प्लॉय, दे प्रोवाइड द जॉब सिक्योरिटी टू द एम्प्लॉय. एम्प्लॉय को जॉब सिक्योरिटी पड़ेंगे बट दे लोअर डाउन द वेजेस. और वहां से क्या होगा, दोनों एम्प्लॉइज का भी और एम्प्लॉयर का दोनों का बेनिफिट होगा. दिस इज बेसिकली कंसेशनरी काइंड ऑफ बार्गेनिंग. Now moving toward the last topic of the collective bargaining, that is an example of the collective bargaining. एक example है NFL collective bargaining agreement. in 1968 में एक agreement हुआ था. This is one of the famous example of collective bargaining agreement का एक same example है. The National Football League Player Association, NFLP एक एसोसिएशन है. दिस एसोसिएशन एंड द नेशनल फुटबॉल लीग केम टू इट्स फर्स्ट कलेक्टिव बार्गेनिंग एग्रीमेंट में आए थे. और यहाँ बेसिकली जो ये फुटबॉल लीग प्लेयर एसोसिएशन है, इट इज बेसिकली एसोसिएशन ऑफ द ट्रेड यूनियन. ये ट्रेड यूनियन का एसोसिएशन था फॉर द बिहाफ ऑफ द फुटबॉल प्लेयर के बिहाफ से ये ट्रेड यूनियन बनाई गई थी. और यहाँ जो कंपनी थी, जो एम्प्लॉयर थे, उनका नाम था नेशनल फुटबॉल लीग. ये एक बेसिकली कंपनी थी. यहाँ ट्रेड यूनियन तो फुटबॉल लीग एसोसिएशन हो गई, और यहाँ फुटबॉल लीग एक कंपनी थी. और इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था, कलेक्टिव बार्गेनिंग हुआ था. किसके बीच में, NFLPA के बीच में, एंड विद द NFL के बीच में एक बार्गेनिंग हुआ था, कलेक्टिव बार्गेनिंग हुआ था.
और इस कलेक्टिव बार्गेनिंग में क्या हुआ था, बेसिकली जो एनएफएल वाज द फर्स्ट रिकॉग्नाइज प्लेयर यूनियन, ये पहला एक प्लेयर यूनियन था, ट्रेड यूनियन चाहे तो, जो कि फुटबॉल एक प्लेयर के बिहाफ पे, क्योंकि अब तक हम जो भी हम ट्रेड यूनियन पढ़ते जा रहे हैं वो बेसिकली रिलेटेड टू द इंडस्ट्री से रिलेटेड है। यहाँ फुटबॉल से रिलेटेड एक ट्रेड यूनियन बना था, उसका नाम है नेशनल फुटबॉल लीग प्लेयर एसोसिएशन था, और वो 1968 में बना था, एंड दे वांट ऑन द स्ट्राइक ओवर द पे एंड द पेंशन इशू। तो यहाँ फुटबॉल के पे और पेंशन से रिलेटेड इशू ट्रेड यूनियन ने बनाए थे। यहाँ ट्रेड यूनियन ने ऑन द बिहाफ ऑफ द फुटबॉल प्लेयर दे पुट द डिमांड इन फ्रंट ऑफ द फुटबॉल लीग टीम की, फुटबॉल नेशनल फुटबॉल लीग के सामने, कंपनी के सामने उन्होंने अपने प्लेयर की साइड से पे और पेंशन से रिलेटेड डिमांड रखी थी। एंड आफ्टर द 11 डे ऑफ द स्ट्राइक किया था, एंड आफ्टर 11 डे के बाद एक एग्रीमेंट फॉर्म हुआ था दैट वाज रीच विद इंक्रीज सैलरी। यहाँ पर बेसिकली इस एग्रीमेंट के बाद क्या हुआ था, व्हाट द सोल्यूशन ऑफ द, or you can say what the agreement was formed, that the salary of the player is increased, and also guarantee the जो football league, the national football league के जो guarantee, they also guarantee them to provide a pension to the football player। तो उन्होंने उस फुटबॉल प्लेयर को पेंशन देने की बात भी की थी, एज वेल एज दे इंक्रीज द पे ऑफ द, increase the salary and the pay of the employer, football player। So this is the one of the best example you can put if the question is asked about the collective bargaining example। So this is all about the today lecture। Thank you, my dear student।